دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مرتے وقت ہی جان پاتے ہیں کہ وہ زندہ تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس زندگی کو شعوری طور پر تب جینا شروع کرتے ہیں جب کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، جب ان کا سب کچھ ہی کھو جاتا ہے۔ زندگی میں زندگی کو مس کر دینے والے لوگوں کی اکثریت ہے۔ موت نہ ہوتی تو یقین مانیے یہ زندہ ہونے کا جو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے یہ بھی کھو جاتا۔ صوفی کہتا ہے پتہ ہے گناہگار کون ہے؟ جو یہاں بھی پچھتاتا ہے، جو وہاں بھی پچھتائے گا، کیونکہ وہ یہاں بھی زندگی کو مس کر دیتا ہے، وہ وہاں بھی زندگی سے چوک جائے گا، کیونکہ چوکنے کی عادت ٹھوس ہو چکی ہے۔ جو لوگ جنت کی چاہ میں اس زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں وہ جان لیں کہ جنت ان سے بہت دور ہے، کیونکہ تم کل میں ہو اور جنت اب میں ہے۔ جنت تو اس وقت بھی چاروں طرف موجود ہے، اسی پل میں موجود ہے، مگر تم نہیں ہو، تم اس پل میں نہیں ہو۔ یہ پل جنت ہے، یہ پل زندگی ہے، یہ پل خدا ہے۔ مولانا رومی کہا کرتے تھے صوفی اسی پل کا بیٹا ہوتا ہے، اور بزرگ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ یاد رکھنا یہ پل ہے زندہ، یہ پل ہے خدا، یہ پل ہے جنت، اور تم اس پل سے بھاگ کر ہی تو کفر کرتے ہو۔ اسی پل میں جو جنت کو نہیں دیکھ سکتا جنت اس پر حرام ہے۔ تم چاروں طرف سے جنت میں گھرے ہو مگر تم خود موجود نہیں ہو۔ جنت ہونے کی حالت سے جڑی ہے، تم نے اسے کرنے سے، اپنی ڈوئنگ سے جوڑ رکھا ہے۔ بے روزگار ہو، کہتے ہو کہ روزگار مل جائے گا تو جنت مل جائے گی، ایک ایکشن ہوگا تو خوشی مل جائے گی۔ سوچو جو نوکری مل گئی تو پھر اس میں ترقی، پروموشن میں کیا تمہاری خوشی نہیں جا چھپے گی؟ تم جہاں ہو وہاں ہونا نہیں جانتے، اور تم جہاں ہو جنت وہی ہے۔ تم نے جہاں ہو وہاں ہونا نہیں سیکھا تو کل مرنے کے بعد بھی کیسے وہاں ہو سکو گے جہاں سے جنت کو جوڑ رکھا ہے؟ ذرا سوچو کہ آج تمہیں جنت میں جا کر چھوڑ دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ تم سکھی اور خوش ہو جاؤ گے؟ یقین جانو تم وہاں بھی جہنم تخلیق کر لو گے، کیونکہ تمہیں آتا ہی نہیں اس بات کو دیکھنا جو موجود ہے۔ اگر تم دیکھ سکتے ہوتے تو یہ بھی دیکھ لیتے کہ تم اس وقت بھی جنت میں ہی ہو۔ پھر سے ایک بار سورج کو دیکھو، پھر سے ایک بار پھولوں کو دیکھو، پھر سے ایک بار پرندوں کا گیت سنو جیسے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ پھر سے ایک بار تازہ دم ہو کر زندگی سے، اس پل سے جڑو۔ پھر سے ایک بار اسی پل میں ڈوبو، خود دیکھو گے جنت میں ہی ہو۔ مس تم اس لیے نہیں کرتے ہو کہ جنت دور ہے، کسی اور جہان میں ہے، چوکتے تم اس لیے ہو کہ جنت میں موجود تھے لیکن لمحے موجود میں رہنے کا فن نہیں آتا تھا۔ گناہگار اس دنیا میں بھی، اگلی دنیا میں بھی دکھی رہتا ہے، اور چونکہ اکثریت انکانشیس ہے تو اس انکانشیسنس کو سراہنے والے لوگ بھی تمہیں بہت مل جائیں گے۔ دولت کے پیچھے بھاگنے والوں کو کامیاب کہہ کر سراہنے والے لوگ، سیاستدانوں کے قصیدے پڑھنے والے لوگ کہاں نہیں ملتے؟ یہ بے ہوشوں کا معاشرہ ہے۔ تم کیا کر رہے ہو تمہیں خود کو ہی پتہ نہیں، اور جس کا تمہیں ہی پتہ نہیں اسی کام کی تعریف کرنے والوں سے یہ دنیا بھری پڑی ہے۔ پیرس میں ایک بار پکاسو کی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگ اس کی ایک تصویر کے گرد کھڑے تعریفیں کر رہے تھے۔ اسی وقت پکاسو آیا اور اس نے اس الٹی تصویر کو سیدھا کر دیا۔ تصویر الٹی تھی مگر لوگ اس کی بھی واہ واہ کر رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ پینٹنگ الٹی ہے۔ یہ تو ہیں تمہارے نقاد، تمہاری تعریفیں کرنے والے، انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ تصویر کیسی ہوتی ہے مگر تعریف کیے جا رہے ہیں، اور جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ بھی خوش ہوئے جا رہے ہیں۔ نہ تعریف کرنے والوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں،
न जिसको सराहा जा रहा है उसे पता है कि क्यों उसे सराहा जा रहा है। बस बेहोश लोगों का एक मजमा है जो एक दूसरे की तारीफें करके अना को फुला रहा है। इसी पिकासो का एक वाकया है कि एक अमरीकी अरबपति उसके पास गया और कहा, मुझे तुम्हारी 2 तस्वीरें चाहिए, पैसे जितने कहोगे मिल जाएंगे। उस आदमी ने नया नया महल बनाया था और 2 तस्वीरों की उससे जरूरत थी। पिकासो के पास उस वक्त बस एक ही पेंटिंग थी। वो अंदर गया, उसने कैंची उठाई और दरमियान में एक तस्वीर को 2 हिस्सों में काट कर उस अमरीकी अरबपति को सौंप दी और 2 तस्वीरों के पैसे उसको दे दिए। कभी गौर करो, तुम भी जिंदगी की तस्वीर को समझते नहीं हो, बस उसको ड्राइंग रूम में सजाने की फिक्र में ही रहते हो। वो तस्वीर जो समझ ना आए वो तुम्हारे ड्राइंग रूम की जीनत तो शायद बढ़ा भी दे, मगर उससे तुम महजूज हो सकते हो ये मुमकिन नहीं है। इंसानी वजूद की परतें होती हैं। जब तक इन परतों को तुम नहीं समझोगे कभी ये नहीं समझ पाओगे कि वो जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो क्या है। इंसानी वजूद की पहली परत है तुम्हारा जिस्म। लोगों की बड़ी अक्सरियत तो वो है जो इसी जिस्म को ही कुल हकीकत मान लेती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई महल है जिसकी सीढ़ियों पर आप बैठ गए, उन्हीं सीढ़ियों को अपना मकान बना लिया। तुम ये नहीं समझ पा रहे कि ये सीढ़ियां महल तक पहुंचाने का बस जरिया है, खुद महल नहीं है। जिस्म की सतह पर जीना ऐसे है जैसे सीढ़ियों को मकान समझ लेना, मगर तुम लोगों ने जिस्म को ही अपनी हकीकत मान लिया है। तुम सीढ़ियों पर ही जीते हो, सीढ़ियों पर ही खाते पीते हो, शादी ब्याह करते हो, बच्चे पैदा करते हो और वही जिस्म दोबारा राख बना देते हो। और ऐसे लोगों के बच्चों को तो महल का पता तक नहीं लग पाता कि वो सीढ़ियों पर ही पैदा हुए, सीढ़ियों पर ही पले बढ़े, सीढ़ियों पर ही अपनी सारी जिंदगी बिता दी। उनके तो जहन में ये ख्याल तक नहीं आता कि वो सीढ़ियों पर जी रहे हैं। वो लौट कर पीछे की तरफ देखते ही नहीं। वो तो कभी महल के दरवाजे पर दस्तक तक नहीं दे पाते। और अब तो कितनी ही नस्लें बीत चुकी हैं इंसान की जिन्होंने उस महल पर दस्तक देने के बारे में भी नहीं सोचा। महल का दरवाज़ा करीब करीब जैम हो गया है। अब तो उस महल का दरवाज़ा भी दीवार जैसा लगता है। अब पता ही नहीं लगता कि दरवाज़ा है कहाँ। ये जिस्म तुम्हारे कुल होने की बस पहली परत है और तुम इसी पहली परत में ही जी लेते हो। इसको यूं समझो कि तुम प्याज हो और अपनी बाहरी तरीन परत को ही जीते जा रहे हो। पहली परत प्याज की कभी गौर से देखी है? वो भद्दी होती है, वो सूखी सड़ी होती है, वो कहीं कहीं गल सड़ भी जाती है, वो कहीं से उधड़ भी जाती है। जिस्म की सतह पर जीना ऐसे ही जीना है जिसमें बीमारियों की जलन सड़न है, जिसमें भूख प्यास के पीछे दौड़ती तुम्हारी जिंदगी की झुर्रियां हैं। इस बाहरी परत से आइडेंटिफिकेशन इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम्हें ये ख्याल तक नहीं आता कि नीचे भी तुम्हारी कई परतें हैं। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि जिस्म तुम्हारा है, तुम नहीं हो। प्याज की बाहरी परत प्याज की ही है, मगर प्याज सिर्फ बाहरी परत ही नहीं है। इसको यूं समझो, अगर कोई शख्स माजूर है और उसके हाथ या पैर नहीं है तो क्या वो अपने होने में, जिंदगी के अपने तजर्बे में नाकामिल, नामुकम्मल कहा जा सकता है? बीइंग का ताल्लुक मिल्कियतों से नहीं मालिक से है। वो जिसका जिस्म है, वो जिसका दिमाग है, वो है बीइंग, वो है हस्ती। तुम जिस भी चीज को मेरा कह सकते हो, याद रखना वो तुम हो ही नहीं सकते। जब कहते हो मेरा जिस्म, इसमें 2 चीजें हैं, एक मैं, एक जिस्म, एक मिल्कियत, एक मालिक। जो भी आपका है वो आपके हाथ में हो सकता है, आपके काबू में हो सकता है, मगर वो आप नहीं हो सकता। सोचो ना, कोई तुम्हारा हाथ काट दे तो भी तुम नहीं कटोगे, हाथ ही कटेगा। अगर तुम्हारा जिस्म होते तो हाथ कट जाने पर तुम्हें ये लगता कि अब तुम कुछ कम हो गए हो। एक हाथ कट गया, मैं इतना कम हो गया, लेकिन हाथ कट जाने, आंखें खो जाने, कान बंद हो जाने, पैर माजूर हो जाने से तुम्हारे पूरेपन में, मुकम्मल होने में,
कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस्म कमजोर हो जाता है, हादसों में माजूर हो जाता है, आज़ा कट जाते हैं, तुम फिर भी पूरे रहते हो। जवान थे, 100 किलो वजन था, तब भी तुम पूरे थे। 1 किलो के बच्चे थे, तब भी तुम पूरे थे। 30 किलो के बिस्तरे मर्ग पर पड़े बूढ़े होते हैं, तब भी वो पूरे होते हैं। कभी और किया तुमने? रोज तुम्हारे आस पड़ोस में, इर्द गिर्द में, गांव मोहल्ले में लोग मरते हैं, मगर तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं भी मरूंगा। इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज होना चाहिए। सभी मर रहे हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर कोई मकाम है जो मौत के इतने वाजे होने के बावजूद मरने का इनकारी है। कोई समझाए कि हर इंसान को मरना है तो सब सुन लेते हैं, मगर तुम्हारे अंदर कोई है जो मुसलसल इस बात से इनकार करता रहता है। क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि मैं मर जाऊंगा तो जिया कैसे जाए? जहां मौत इतनी हतमी हो, जहां हर बंदा मौत की कतार में खड़ा हो, वहां जिंदगी के हंगामों को जी पाना भला कैसे मुमकिन है? हर इंसान मौत की तरफ ही बढ़ रहा है, मगर फिर भी यूं जी रहा है जैसे मरना ही नहीं। इसके पीछे एक राज है, और जो इसके पीछे राज है वो बस इतना है कि जो भी तुम्हारे अंदर है वो मरने वाला नहीं है। तुम जिस्म के साथ जितने भी जुड़ गए हो, जितने भी उसके साथ शिद्दत से आइडेंटिफाइड हो गए हो, मगर तुम फिर भी जिस्म नहीं हो गए हो। आज भी जिस्म को सब कुछ मानकर जीने वाला इंसान अपने जिस्म को अपना जिस्म कहता है, कभी ये नहीं कहता कि मैं जिस्म। वो तुम्हारे अंदर का जो सच है उसे चाहे तुम जितना भी झुटलाओ, झूठ नहीं हो जाता। कोई कितना भी नशे में, शराब में धुत हो जाए, उसके अंदर जो मैं हूं का एहसास है वो बाकी ही रहता है। जबान पर कंट्रोल चाहे खो जाए, हाथ पर काबू चाहे ना रहे, जिस्म का एक भी उज़्व उसके कंट्रोल में चाहे ना रहे, उसे ये जरूर पता होता है कि ये मैं हूं। ये आई एमनेस उसके जिस्म का हिस्सा ही नहीं है। ये आई एमनेस जिस्म से मुंसलिक सही, मगर जिस्म से हमेशा आजाद है। एक बज़ाहिर अहमक आदमी था, मगर हकीकत में बहुत सियाना। एक दिन अपने घर के बाहर बैठा सुबह सवेरे पागलों की तरह हंस रहा था। लोगों ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों हंसे जा रहे हो? उसने कहा, अजीब बात है, तुम लोगों की समझ में नहीं आएगी जब तक तुम पूरी कहानी ना सुन लो। लोगों ने कहा, सुनाओ पूरी कहानी। उसने कहा, हम 2 भाई थे, जुड़वा, बिल्कुल ही हम शक्ल, कोई भी फर्क न कर पाता था, लेकिन इसकी वजह से मैं पूरी जिंदगी हमेशा नुकसान में रहा। स्कूल में मेरा भाई किसी को पत्थर मार देता, सजा मैं पाता। चोरी वो करता, पकड़ा मैं जाता। मोहल्ले में किसी को तंग वो करता, मार मुझे पड़ती। और सबसे आखिरी और बड़ा जुल्म पता है क्या हुआ? एक लड़की से प्यार मैं करता था, उसको लेकर भाग वो गया। लोगों ने कहा, तो आज क्यों इतने हंस रहे हो पागलों की तरह? उस शख्स ने कहा, मेरे भाई ने जो भी ज्यादतियां मेरे साथ की, 7 दिन पहले उन सब का हिसाब पाक हो गया। लोगों ने कहा, वो कैसे? उसने कहा, 7 दिन पहले मैं मर गया था, मगर लोगों ने उसे दफना दिया। कभी गौर करना, इतनी बेहोशी कभी किसी को भी नहीं होती। तुम अपने जिस्म के साथ जितने भी जुड़वा हो जाओ, ऐसी भूल फिर भी ना हो सकेगी। वो शख्स यकीनन बेतहाशा शराब पिए बैठा था, इसलिए यूं कह रहा था। तुम लोग गौर करो, तुम भी नशे में ही हो, कई नस्लों से शराब में धुत हो, लेकिन जितनी भी शराब हो इतनी कभी नहीं हो जाती कि तुम्हारा पूरा होश ले जाए। तुम्हारा होश, कॉन्शियसनेस उभर उभर कर बाहर आने की कोशिश करता ही रहता है। कहीं तुम अपने बातिन की गहराइयों में इस बात से आगाह हो कि तुम नहीं मरोगे। सारे शवाहिद तुम्हें यही बताते हैं कि मौत आएगी ही आएगी, फिर भी ये भरोसा तुम नहीं छोड़ते कि मैं नहीं मरूंगा। तुम ऐसे ही यहां जीते हो कि जैसे सदा यही रहना है, और शायद इसी वजह से बहुत सी गलतियां होती हैं। मजबूत मकान बनाते हो जैसे सदा रहना है, मगर इन सारी भूलों, सारी गलत फहमियों में भी गौर करना, कहीं ना कहीं सच की झलक तुमको मिल जाएगी। नहीं तो ये भूलें, ये गलत फहमियां अब तक बंद हो जाती। तुमने शाहों के महल खंडर बनते देख लिए हैं, मगर पक्के और मजबूत मकान बनाने नहीं छोड़े।
तो जानो तुम्हारी इस भूल में भी कहीं कोई गहरा सच छुपा है। कोई है जो ये जानता है कि तुम मरने के नहीं हो। सब मरते हैं, तुम भी मरोगे, ये साफ बात है, आदादो शुमार और मुशाहिदे से साबित है। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई है ना मरने वाला, जो मौत के इतने हतमी होने के बावजूद जीने को ज्यादा बड़ी हकीकत बना रहा है।